اس کے بعد میں اپنے اگلے مقرر کامریڈ نثار شاہ عوامی ورکرز پارٹی کشمیر کے رہنما ہیں، وہاں سے خصوصی طور پر تشریف لائے ہیں، ان سے میں درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات کا مختصر اظہار کریں۔ کامریڈ نثار شاہ۔ دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم کامریڈ یوسف مستی خان کی یاد میں یہاں جمع ہوئے ہیں، اور سب سے پہلے تو میں جموں کشمیر کے جو عوام ہیں، جو مظلوم قومیت ہے جموں کشمیر کی جو قوم ہے، اس کی طرف سے کامریڈ یوسف مستی خان کی جدوجہد کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے ہمیشہ ایک اصولی سیاست کی، اور نہ صرف پاکستان کے اندر قوموں کی حق خود ارادیت کی بات کی، بلکہ جموں کشمیر کے اوپر جو قبضہ ہے اس کے حوالے سے بھی جو دو ملکوں کی جو پالیسی ہے اس کو حرف تنقید بنایا، اور جموں کشمیر کے عوام کی جو ہے مکمل آزادی اور خود مختاری کے جو حق ہے اس کی حمایت کی۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک اصولی موقف تھا۔ یہ جو اس خطے کے اندر جو پالیٹکس ہو رہی ہے، جو سیکورٹی سٹیٹ کا جو ایک معاملہ بنا کے جس طرح اس ملک کے محنت کش عوام کو، یہاں کی مظلوم قومیتوں کو، یہاں کی خواتین کو، یہاں کے مظلوم مزدوروں اور کسانوں کو جس طریقے سے ان کا استحصال کیا گیا گزشتہ 70-75 سالوں کے اندر، اب میں سمجھتا ہوں کہ وہ چیزیں ایکسپوز ہو کے سامنے آ رہی ہیں، اور یہ بات بالکل واضح ہو گئی ہے کہ یہ جو لوگ جو دفاع کے نام کے اوپر جو بات کرتے تھے کہ وہ اس ملک کے محافظ ہیں، وہی لوگ اس ملک کے عوام دشمن ہیں، اور ان کے خلاف میں سمجھتا ہوں کہ آج کی محفل کا اگر کوئی مقصد ہے یا کامریڈ یوسف مستی خان کو خراج عقیدت پیش کرنے کا کوئی بہترین طریقہ ہے تو وہ یہی ہے کہ اس حال کے اندر مجھے بہت سارے چہرے نظر آ رہے ہیں جن کی پوری زندگی ایک جدوجہد کے اندر گزری ہے، اور جو حقیقی معنوں میں یہاں کے جو مظلوم طبقات کے نمائندے بھی ہیں، مظلوم قوموں کے نمائندے ہیں، مظلوم جو خواتین کی تحریکیں ہیں ان کے نمائندے ہیں، کسانوں کی تحریکوں کے نمائندے ہیں، آریوں کی تحریکوں کے نمائندے اور مزدوروں کی تحریکوں کے نمائندے۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج یہاں عائد کیا جائے کہ یہ جو ڈرامہ ہو رہا ہے ابھی پنجاب کے اندر، جس طریقے سے بات ہو رہی ہے عمران خان اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ایک تنقید کرنے والا ابھر کے سامنے آیا، اور اسی طرح وہ امریکن سامراج کے خلاف بھی بات کر رہا ہے، لیکن یہ سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ اس نے کبھی بھی بلوچوں کے قتل عام کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ یہی اسٹیبلشمنٹ بلوچوں کو قتل کر رہی ہے، لیکن وہ یہ بات نہیں کرتا کہ یہاں مسنگ پرسنز جو ہزاروں کے حساب سے ہیں، جو فوج اٹھا کے لوگوں کو لے جاتی ہے، اس بات پہ تو اس نے ایجنسیوں کے اوپر کبھی تنقید نہیں کی۔ پشتون جو مظلوم پولیٹیکل کارکن ہیں کشمیر کے جو ہیں، اسی طرح جو پاکستان کی مظلوم قومیتوں کے پولیٹیکل کارکن ہیں، اس کے اوپر اس نے کبھی ایجنسیوں اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کوئی تنقید نہیں کی۔ تو وہ کس طرح کا انقلاب اس ملک کے اندر چاہتا ہے، یہ تو ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ وہ امریکن سامراج کی باتیں کرتا ہے کہ وہ سامراج کے خلاف ہے اور امریکن پالیسی کی بات کرتا ہے۔ ہماری یہ سمجھ سے باہر ہے کہ وہ جو فنڈامنٹلسٹ قوتوں کو کے ساتھ کھڑے ہو کے اس ملک کے اندر جس طریقے سے جو یہاں کے لوکل تضادات ہیں ان کو سمجھے بغیر جو بات کی جا رہی ہے، یہ ایک مرتبہ پھر یہاں کے عوام کو دھوکہ دے کے فراڈ کر کے تو انقلاب کے نام پہ بیوقوف بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو قائد تھے کامریڈ یوسف مستی خان، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جب کانفرنس تھی اس میں پوری پاکستان کی پولیٹیکل لیڈرشپ بیٹھی ہوئی تھی، پوری جرأت اور بہادری کے ساتھ انہوں نے وہاں یہ بات کہی تھی کہ یہ جو پولیٹیکل پارٹیاں جن کی سینٹرل کمیٹی کے اندر آئی ایس آئی کے جو ہے آ کے آفیسر بیٹھتے ہیں، ایجنسیوں کے آفیسر بیٹھتے ہیں، یہ اس ملک کے اندر کیا جمہوریت کی بات کریں گی، یہ اس ملک کے اندر کیا جو ہے انقلاب اور تبدیلی کی بات کریں گی۔ انقلاب اور تبدیلی کی اگر کوئی بات یہ کر سکتا ہے تو وہ بایاں بازو کر سکتا ہے، وہ اس ملک کے مظلوموں اور مظلوم قومیتوں کے جو نمائندے ہیں وہ بات کر سکتے ہیں۔ جو نچلے طبقے کی سیاست کرنے والے لوگ جو اس ملک کے اندر اسٹیبلشمنٹ کے اور فوج کے
एताब का शिकार रहे हैं और अपनी पूरी जिंदगियां जेलों के अंदर गुजारी हैं, वही इनकलाब की बात कर सकते हैं। इसलिए हम ये समझते हैं कि कॉमरेड यूसुफ मेहदी खान की जिद्दोजहद को बेहतरीन खराज अकीदत ये है कि इस हाल के अंदर मौजूद लोग आज ये सोचें कि हमने इस मुल्क के अंदर किस तरीके से हकीकी एक निजामती जिद्दोजहद को आगे बढ़ाना है और एक पीपल्स मूवमेंट बनानी है जो इस मुल्क के अंदर हकीकी एक अवामी इनकलाब ले आए और यहाँ के मसाइल हल हों। बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। इसके बाद मैं एक बड़ा नाम बलूचों की जद्दोजहद के हवाले से मोहतरमा आमना बलूच साहिबा से गुजारिश करूँगा, बलूच यकजहती कमेटी के रहनुमा हैं, कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और तकरीर के बाद मेरी इनसे गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ रखें मोहतरमा आमना बलूच। अस्सलाम वालेकुम। मैं मेंटली तैयार नहीं थी इतनी बड़ी शख्सियत के लिए बात करने के लिए, यूँ अचानक मुझे बुलाया गया। सिर्फ इतना कहूँगी, कराची से खैबर पख्तूनख्वा तक मजलूम तबका जो पाकिस्तान में 75 सालों से जिसको रगड़ा जा रहा है, एक इंतहाई नफीस शख्सियत एक कॉमरेड से महरूम हो गया है। अगर मैं कराची में जो हमारे बलोच कम्युनिटी के हैं उनके हवाले से बात करूं तो वाजा ने हालिया दिनों में बहुत कोशिश की कि कराची के बलोच यकजा हो जाए, क्योंकि मसाइल हम सिर्फ बलोचिस्तान में नहीं देख रहे हैं, हम सिर्फ ईरानी बलोचिस्तान में नहीं देख रहे, कराची में रहने वाले बलोचों के भी मसाइल हैं, हर तरह के मसाइल हैं, चाहे लियारी हो, मलीर हो, गोलीमार हो या कोई भी इलाका हो। वाजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन छोटी छोटी बातों में हमारा यकजा ना होना, हमारी जिद, हमारी अनापरस्ती शायद हमको दिन आज तक यकजा नहीं कर सकी। तो अगर हकीकतन हम लोग ये चाहते हैं कि हम वाजा को रोज़ाना अगर खिराज तहसीन पेश करना चाहें, उन्हें याद करें, उनकी जद्दोजहद को याद करें, तो एक बलोच की हैसियत से, कराची में बसने वाले बलोच की हैसियत से हमें अपनी बका की भी जंग लड़नी है। कराची में बसने वाले बलोचों की भी बका की जंग लड़नी है, चाहे वो इंडिजीनियस अलायंस के ज़रिए मलीर गड्डाब काठोड़ की ज़मीनें हो या मलीर एक्सप्रेस वे हो। इस वक्त अगर हम देखें तो हमारी बका का सबसे बड़ा मसला इस वक्त मलीर एक्सप्रेस वे है। मलीर जिसे कराची का ऑक्सीजन कहा जाता है, उसकी ग्रीनरी को जिस तरह ख़त्म करके जिस तरह कराची के चेहरे को मस्क किया जा रहा है, जिस तरह बलोचिस्तान में मस्कशुदा लाशें फेंकी जा रही हैं, तो मैं यही समझूंगी कि मलीर एक्सप्रेस वे को बनाकर कराची की मस्कशुदा लाश फेंकने की तैयारी की जा रही है। अगर हम वाजा की जद्दोजहद को हमेशा यादगार बनाना चाहते हैं तो इस मसले पर ज़्यादा से ज़्यादा आवाज़ उठानी होगी। जहां तक बहरिया टाउन अपने भेड़ियों के जरिए बहरिया टाउन को फैला रहा है, उस जद्दोजहद को हमें मजीद तेज करना होगा, ताकि बलोचों की ज़मीनें जो यहाँ से 75 साल की तारीख पे मोहताज नहीं हैं, जिनकी 7000 साल की अपनी तारीखी पहचान है, वो बरकरार रहे। आखिर में मेरी बहुत सारी दुआएं वाजा के लिए, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करे। शुक्रिया। ये बलोच यकजहती कमेटी की तरफ से एक पोर्ट्रेट हम वाजा की फैमिली को पेश करना चाहेंगे। साथियों, जैसे कि मैंने प्रोग्राम की इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि मोहतरम यूसुफ मेहदी खान साहब को खराज तहसीन पेश करने के लिए पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। तो अब मैं अपने अगले स्पीकर हैं जो कि मुल्तान सराइकी वसीब से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहतरम फरहत अब्बास अवामी वर्कर्स पार्टी, उनसे गुजारिश करूँगा फरहत अब्बास साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ये खुसूसी तौर पर मुल्तान से तशरीफ़ लाएँ। शुक्रिया। स्टेज पे बैठे हुए मेरी पार्टी के कायद अख्तर फैन साहब, जनाब अख्तर मैंगर साहब और मेरे दीगर अकाबरीन,
हाल में बैठे हुए ख़वातीन और हज़रात, मैं सबसे पहले तो कराची पार्टी से, सिंध की पार्टी से और यूसुफ मस्ती खान के ख़ानदान से सराइकी वसीम की तरफ से ताज़ियत पेश करना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ दोस्त आए हैं, मैं उनका भी नाम लेना चाहूँगा। हमारी फेडरल कमेटी के रुकन इकबाल मलिक साहब आए हैं आपके इस ताज़ियती प्रोग्राम को अटेंड करने के लिए। राब निवाज साहब हैं और दीगर दोस्त हैं। दोस्तों, हमें बहुत दुख है, हम अफसोस की इस घड़ी में हैं कि हमारे कायद, हमारे सरपरस्त, हमारी पार्टी के सदर हमसे जुदा हो गए और इस ऐसे वक्त में जुदा हुए जब पूरी दुनिया में बिलखुसूस बिलअमूम और पाकिस्तान में बिलखुसूस बाएं बाजू की कुव्वतों को, तरक्की पसंद जमातों को, मजलूम कौमियतों की आवाज़ उठाने वाली जमातों को, मजलूम तबकात के लिए जद्दोजहद करने वाली जमातों को ऐसी क़यादत की बहुत ज़रूरत थी। इसमें कोई शक नहीं है कि उनकी कायदाना सहीयत ने हमारी इस पार्टी को मुत्तहिद भी रखा और इससे पहले जब मेरा उनके साथ ताल्लुक़ हुआ तो जब हमने नेशनल वर्कर्स पार्टी बनाई और नेशनल वर्कर्स पार्टी बनाने में उनका किरदार और उसके बाद पाकिस्तान के अंदर दीगर जो जमातें तरक्की पसंद मौजूद थी उनको इकट्ठा करने में वर्कर्स पार्टी और फिर अवामी वर्कर्स पार्टी की तश्कील तक उनका किरदार बहुत अहम रहा। साथियों, उनकी शख्सियत और उन जैसे बाकी इनकलाबी हीरोज़ की शख्सियत को हम आज खिराज तहसीन इसलिए पेश करते हैं कि हमारी नौजवान नस्ल आज जिस तरह ज़हनी इस्तेसाल का शिकार है, जिसको पता ही नहीं है कि तारीख क्या थी, इनकलाब क्या होता है, इनकलाबियों की जद्दोजहद किस तरीके से होती है, तो वो उस नस्ल को यूसुफ मस्ती खान समेत सब उन कायदीन का, सब उन हीरोज़ का पैगाम पहुँचाना बहुत ज़रूरी है। जब कोई जगह खाली हो जाती है तो उस खाली जगह के ऊपर या तो कोई गंद फेंक देता है या कोई फूल रख देता है। ये हकीकत है कि इस वक्त जिस तरीके से लोगों को, नौजवान नस्ल को गुमराह किया जा रहा है, आज़ादी के नाम पर, इनकलाब के नाम पर, फौज दुश्मनी के नाम पर, वो झूठ पर मबनी है, वो सिर्फ गुमराही फैला रहा है। मेरे कायद ने जहां इनकलाबी जद्दोजहद की, मैं इस बहस को, इस सवाल को एक तरफ रखते हुए कि उन्होंने कौमी जद्दोजहद के लिए बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, उन्होंने तबकाती जद्दोजहद करने के लिए बहुत ज़्यादा तगोदौद की, मैं ये समझता हूँ कि जबर की हर शक्ल, जो रियासती जबर हो, जो तबकाती जबर हो, जो कौमी जबर हो, उसके खिलाफ सीना सफर होकर यूसुफ मस्ती खान आपको खड़ा हुआ नजर आएगा। यूसुफ मस्ती खान ने सिर्फ ये नहीं कि अपनी पार्टी की सियासत को लोगों तक फैलाया, उनकी कादावर शख्सियत ने बड़े बड़े कादावर शख्सियत वाली पार्टियों को, बड़ी बड़ी पार्लिमानी पार्टियों को यह बताया कि जमहूरियत पाकिस्तान में किस तरीके से मजबूत होगी। मेरे कायद बैठे हुए पार्लिमानी पार्टियों के सरबराह हैं, उनका ताल्लुक, उनका वास्ता मुझसे भी ज्यादा है, मुझसे ज्यादा वो समझते हैं कि यूसुफ मस्ती खान की सोच क्या थी, उनका किरदार क्या था। वो ये बताना चाहते थे और वो इस बारे में कमिटेड थे, असूल परस्त थे कि पाकिस्तान के अंदर जब तक आप इकोनॉमिक्स ऑर्डर को तब्दील नहीं करते, जब तक आप सोशो
इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज नहीं करते, आपकी जमहूरियत लंगड़ी लूली ही रहेगी। आपकी जमहूरियत के ऊपर कभी फौज कब्जा करेगी, कभी कुछ और कब्जा करेगा। तो इसलिए मेरे दोस्तों, आज उनकी शख्सियत को खराज तहसीन पेश करने का सबसे अहम तरीका वो ये है कि हम उनके बताए हुए रास्ते को, हम उनकी जिंदगी के असूलों को अपना असूल बना लें। और हर दोस्त जो है, पार्टियां कुछ हवाले में नहीं बनती, अलायंस को इस तरीके से नहीं बनते। आज हम जिस तरीके से कोशिश कर रहे हैं, हमारी पार्टी की कायद भी और यहाँ दूसरे मेरे लीडर भी बैठे हुए हैं कि हम इकट्ठे हो जाएं, किसी अलायंस में चले जाएं, बहुत मुश्किल होता है। आज इनकलाब का वो जमाना नहीं है जो आज से 2-3 दहाइयों पहले था। आज दुनिया में भी, दुनिया भर में जो है वो बाएं वाली पार्टियां उस तरीके से मजबूत नहीं है, वो इन्वायरमेंट नहीं है, वो हालात नहीं है जिससे इनकलाबी बनते जाएं और आपकी पार्टी में शामिल होते जाएं। आज हमें मुश्किल सियासत करनी है और मुश्किल सियासत मेरे कायद ने बताई थी कि किस तरीके से करनी है। दोस्तों, अभी मेरी कश्मीर पार्टी के दोस्त वो ये फरमा रहे थे कि इमरान खान साहब जो है वो अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं। वो अमरीकी साम्राज्य मुर्दाबाद का नारा नहीं लगा रहा, वो तो एक अमेरिका का खत जो है उसको लहराता था, अभी नहीं लहराता, और उसने उसको जवाब बना के अपने रिजीम चेंज करने का और हुकूमत को तब्दील करने का एक स्टंट जो है वो खड़ा किया। और कुछ दोस्त तो ये समझते हैं, कुछ दोस्तों का ये भी ख्याल है कि ये जो तहरीक चल रही है पंजाब के अंदर, आज़ादी की जो लॉन्ग मार्च चल रही है, ये शायद वो शऊर है जो अवाम को एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो है वो आ गया है और वो अब एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और उसकी सियासत के अंदर मुदाखलत के खिलाफ लड़ रहे हैं। क्या यही शऊर है कि आप ये कहें कि IMF के साथ मुआहदात भी करने हैं? क्या यही शऊर है कि आप CPEC को क्लोज कर दें और IMF को जाके उसके सारे के सारे एग्रीमेंट पेश कर दें? क्या यही शऊर है कि आप अमेरिका के साथ माशी ताल्लुकात तो कायम रखें, मुल्क के अंदर जागीरदारी निज़ाम को कायम रखें, मुल्क के अंदर सरदारी निज़ाम को कायम रखें और आप कहें कि मैं इनकलाबी हूँ? अगर आपने इनकलाब की बात करनी है, अगर आपने इनकलाब के मुतालिक सोचना है, समझना है और लोगों को बताना है, तो वो जो हीरो मेरे इस दुनिया से चले गए उनकी जिंदगियों को जाके पढ़ो और जाओ और जाके शाही किले के दरो दीवार को देखो कि वहाँ उनके लिए इनकलाबियों की जो है वो तारीखें लिखी हुई हैं। तो आखिर में मैं यही गुजारिश करूँगा अपने कायदीन से और ख़ासकर दीगर पार्टियों के कायदीन से कि जुज़ियात में पड़े बगैर, लफ्ज़ों के ऊपर जो है ना वो हम जो तनकीद करते हैं उसमें पड़े बगैर, ये जो हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, मेरे समेत सियासी कोर कम बैठे हुए हैं, उनको कोई खुशखबरी सुनाएं, उनको ये बताएं कि आप लोग जो है यूनाइट हो रहे हैं। थैंक यू।